Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 10 of D2 8th edition, that is trigonometric ratios. What is basically trigonometric ratios and on which we can apply or which triangle we are using. So let's see that. Basically trigonometric ratios only we can apply on right angle triangle. We can use only right angle triangle, and on right angle triangle I told you the opposite side of the right angle is always your hypotenuse. Now one side is the base and one side is the is your perpendicular according to the given angle. For example, if I have to find according to angle A, so now this is the adjacent side. Basically this is the adjacent side and this is the opposite side. Adjacent side will be adjacent and base, they are same, and perpendicular or opposite. Mostly we'll use the perpendicular, but now we'll use the opposite. Perpendicular and opposite are different. Now if I have to find according to angle C, so according to angle C this will be the adjacent angle. जो भी उसके साथ एंगल के साथ साइड है that will be your adjacent or base, and this according to angle C this is your opposite or perpendicular. Clear this thing? Now we have basically in this chapter three trigonometric ratios. The first one is called sine, second one is called cosine, and third one is called tangent. And their short forms are, इसको हम लिखते हैं sin, साइन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है cos एंड इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है tan. क्लियर? अब साइन किन दो क्वांटिटीज से बनता है? हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज सेम, जो आप अकॉर्डिंग टू द 90 डिग्री फाइंड आउट करेंगे. हाइपोटेन्यूस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली द इफेक्ट ऑफ योर एडजेसेंट एंड ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू द एंगल. नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल ए, so sine of angle A, I'm writing according to angle A, so it will be sine is always opposite by hypotenuse. Opposite by hypotenuse. These are the formulas that you have to memorize. Cos is always base over hypotenuse, adjacent over hypotenuse, adjacent by hypotenuse, and tan is basically the combination of sine and cos. So tan is basically perpendicular by adjacent. Opposite, because we are using opposite, so opposite by adjacent. This is the value of tan. These three are the trigonometric ratios that you have to memorize. Clear? Now moving towards question number 1, so you will identify the things more clearly. Exercise 10a, question number 1. For each of the following right angle triangle, name the hypotenuse. And I told you hypotenuse is always the opposite. 90 degree is here, that means this is the hypotenuse, and the name of this hypotenuse is QP. ओके, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए. एंगल ए ये है, तो इसके साथ जो ये वाली, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूस है, इसको तो आपने आप क्रॉस कर देना, ठीक है. अब आपके पास दो साइड्स बची हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है. इसके ऑपोजिट में कौन सी साइड है? ये वाली साइड है. सो दैट मीन आर पी इज़ अ ऑपोजिट साइड, और एडजेसेंट आपके पास क्या बन जाएगा? क्यू आर. आई बात समझ में? अच्छा जी, नेक्स्ट में भी आपके पास अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ऑपोजिट आपके पास क्या, हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या बना? ये बन गया. ए के ऑपोजिट अब ये वाली चीज़ हो गई, दो चीज़ें हैं. ये वाला क्या बनेगा? एडजेसेंट बन जाएगा, क्योंकि ये इस एंगल के साथ है, और ये इसका क्या बन जाएगा? ऑपोजिट. सिर्फ आपने आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से करनी है. अगर आपने आइडेंटिफिकेशन ठीक तरह से कर ली, दैट मीन इट इज़ ईजी फॉर यू टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. ओके, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, हमने बताना है साइन ए, मतलब साइन ए का मतलब क्या है? ये वाला, ठीक है. एंगल ए है तो ये साइन ए होगा. ये वाला एंगल कौन सा बनेगा? बी बनेगा. ये एंगल सी है. हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास क्लियर है, दैट इज़ 13. अब साइन ए के लिहाज से ये आपके पास क्या है? एडजेसेंट है, और ये आपके पास क्या है? ऑपोजिट है. सो हम उसके अकॉर्डिंग अब वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है.
फार्मूलाज आपको याद हैं, आइडेंटिफिकेशन आपकी हो गई है. सो क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए. जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज़. आपने कुछ भी नहीं करना. हाइपोटेन्यूस आपके पास मेंशन है. हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है. कीप दिस इन योर माइंड. साइन ए विल बी इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया हुआ ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेन्यूस है. साइन का फार्मूला क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. सो ऑपोजिट की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है? 13. सो दैट इज़ इट. दिस इज़ योर आंसर. दिस इज़ पार्ट 1. पार्ट 2 कॉज ए. कॉज आपके पास क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस या एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस. एडजेसेंट आपके पास क्या है? 12 है. हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है? 13 है. थर्ड आपके पास है tan ए. tan ए ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. ऑपोजिट 5 है, एडजेसेंट आपके पास क्या है? 12 है. सो दिस इज़ योर आंसर. क्लियर? ओके. मूविंग टूवर्ड्स बी. साइन बी. अब बी के अकॉर्डिंग आपने देखना है, तो बी के अकॉर्डिंग आपके पास अब वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी. ये आपका एडजेसेंट बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा ऑपोजिट. ठीक है. अब आपके पास पार्ट 4 में आपके पास क्या है? साइन बी. साइन बी आपके पास क्या बनेगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 13. 5 में आपके पास है कॉस बी. कॉस बी आपके पास एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस. दैट मीन 5 डिवाइडेड बाय 13. एंड पार्ट 6 में आपके पास है tan बी. tan बी आपके पास बनेगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. सो 12 डिवाइडेड बाय 5. क्लियर? tan जो होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है. मैं आपको बता भी देती हूँ कि ऑपोजिट और एडजेसेंट कहाँ से आता है. वैसे इसकी ऐसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर हमें प्रूव आए तो tan जो है वो कॉम्बिनेशन है साइन बाय कॉज का. tan बेसिकली ये होता है, ठीक है. tan इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉज. अब साइन की वैल्यू आपके पास क्या होती है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. कॉस की वैल्यू क्या होती है? डिवाइडेड बाय. डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कर चलें, अभी डिवाइड में ही कर देते हैं. डिवाइडेड बाय. कॉस की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस. अब जब आप हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे ना. ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई विद हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट. सो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या बच जाएगा? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. तो ये यहाँ से आपके पास tan बनता है. tan बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है इन दो वर्ड्स का. मूविंग टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट भी है, पार्ट बी, जिसमें अगेन हमें ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच वन साइड इज़ योर हाइपोटेन्यूस. सो ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज़ योर हाइपोटेन्यूस. दैट मीन दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूस. और अब ये एंगल ए है. सो एंगल ए के लिहाज से ये आपका क्या हो गया? एडजेसेंट हो गया. और ये आपका क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया. ठीक है. अब सारी रेशियोज हम उसी तरह से करते जाएंगे जैसे हमने पहले की थी. साइन ए जो है वो आपके पास बनता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. ऑपोजिट आपके पास है 24, हाइपोटेन्यूस आपके पास है 25. कॉज ए आपके पास बनेगा एडजेसेंट. एडजेसेंट इज 7, हाइपोटेन्यूस इज सेम, दैट इज 25. tan आपके पास क्या बनेगा? बट ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 7. अच्छा, अब पार्ट बी की तरफ अगर आते हैं, मतलब एंगल बी के लिहाज से अगर आपने करना है. सो दिस इज़ योर एंगल बी. सो दैट मीन नाउ दिस इज़ योर एडजेसेंट एंड दिस इज़ योर ऑपोजिट. क्लियर हो गया फॉर एंगल बी. सो अब साइन बी जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा? साइन बी विल बी इक्वल टू साइन बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. ऑपोजिट 7 है, 7 बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज़ 25. कॉस बी आपके पास बनेगा एडजेसेंट 24 डिवाइडेड बाय 25. एंड tan बी आपके पास बन जाएगा 7 बाय 24. दैट इज़ ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. क्लियर? जी, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज़ गिवन दैट इज़ एक्स, क्यू आर इज़ गिवन वाई. अब ये वैल्यूज़ हमारे पास स्मॉल स्मॉल खुद ही गिवन दी हुई हैं. पी क्यू इज़ जी एंड एंगल आर इज़ 90. सो दैट मीन हम हाइपोटेन्यूस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने लिए. ये हमारे पास क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया. अब
आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल्स हमने बताना है। पी के लिहाज से आपके पास अगर हम स्टार्टिंग में ही अपने लिए लिख लेते हैं, दिस इज़ योर एडजेसेंट एंड दिस इज़ योर ऑपोजिट। सो अब हम वैल्यूज सारी फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर पी। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। ओके, पार्ट ए में आपके पास है साइन पी फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है ना। साइन पी इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट क्या है, वाई, वाई बाय हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, जी है। कॉस पी आपके पास क्या बनेगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट आपके पास बन रहा है एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज सेम, दैट इज जी। और फिर आपके पास टेन पी आपके पास बनेगा tan p, this is equal to opposite y by adjacent x। क्लियर। अब आते हैं आप साइन q की तरफ। q के लिहाज से अब ऑपोजिट हो जाएगा, q के लिहाज से ये आपके पास एडजेसेंट हो जाएगा और ये ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। साइन q विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय z। साइन cos q विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z एंड tan q जो आपने फाइंड आउट करना है दैट विल बी इक्वल टू tan q आपके पास क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय y। अगली बात समझ में, जब भी एंगल चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यूज़ भी उसकी चेंज हो जाती है। अच्छा जी, यूजिंग कैलकुलेटर टू एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है, अपना कैलकुलेटर यूज़ करना है। कैलकुलेटर आपका उसका मोड कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। आपने उसके ऊपर लिखा होगा 10, 10 प्रेस करना है और उसके बाद लिखना है 47। जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। आई विल राइट डाउन द आंसर्स फॉर यू ओवर हेयर। 1045 answer is 10.7. I am writing till the three significant figure. Cos 30.9 answer is, sorry, sin 75.3 answer is 0.967. Cos 30.19 answer is 0.864. Part D answer, when you will take cos 35 plus cos 49, so the answer is 1.23. Similarly, the answer of part E, this all we will do with the help of calculator, 2.35, and from here the answer is 0.285. Clear? Okay, moving towards question number 5. Okay, question number 5. This is 90-degree angle, that means this is your hypotenuse, and according to angle M, sine M. So this is our angle M. So according to that, this is our adjacent side and this one is opposite side. Clear? Now we have to find out the terms. Sine M, opposite by hypotenuse, opposite is C, hypotenuse is A. Part 2, cos M, adjacent B by A. Tan, third part is tan M, tangent or tan is C by B. Clear? Okay, next is sine, according to N. Now this will change, this will be opposite, this will be adjacent. So sine N will be equal to B by A. Cos N will be equal to N will be equal to C by A, and tan N will be equal to B by C. Clear? ओके, पार्ट बी इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, दैट मीन ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपका आंसर, एवरीवन आंसर कैन बी डिफरेंट। दे आर सेइंग दैट इफ tan m इज इक्वल टू tan m की वैल्यू आपके पास क्या है, c बाय b, एंड दिस इज इक्वल टू b बाय c। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो वो कहते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल दें आप b और c और a की।
So if you will do cross multiplication, this will be equal to c square is equal to b square. Taking square root on both sides, so this will be equal to c is equal to b. That means जो आप choose करेंगे c की value वही आपके पास b की value होगी. For example, if I am choosing the value of c is 3, so that means the value of b will also be 3. अब मुझे a फाइंड आउट करना है. a आपके पास क्या था, हाइपोटेन्यूज. तो दैट मीन a स्क्वेयर विल बी इक्वल टू b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम. a square I have to figure it out. That means this is 3 square plus 3 square, this is 9 plus 9, so the answer is 18. Taking square root on both sides, so you will get an answer of a is equal to 4.24. So these are the possible value. If you will change the value over here, like if you will take the value of c2, that mean the value of b will also 2, और फिर वो a की value change होगी क्योंकि ये open ended questions हैं. So everyone answer can be different. Okay, so there is no need to worry कि मेरा answer और मेरे class fellow का answer change आ रहा है. So everyone answer can be different. Okay, question number 6 is with calculator. I think just you have to put the values and then get the answer, and that's it. If I will just write down the answers over here. So from here the answer is 4.66 after 5, 10, 61.4 divided by 2 cos, and from here the answer is 1.53. Whatever written is over here, you just have to write down all the values same to same in your calculator and you will get your answer. 10 answer is 1.13 over here. From here the answer is minus 1.41. So it's okay if the answer is coming in negative, so there is no need to worry that about that. From here the answer is 0.723, and part F answer is 0.675657, sorry. Part G answer is I have figured out all the answer, that's why I'm writing it directly, 2.01, and from here the answer is 0.910. Clear? Directly you will put all the values in your calculator and you will get the answers. Where are plus and minus, so always use a bracket, so there will be less chances of mistakes. So that's it for today. See you soon with my next video of exercise 10b. Till that, Allah Hafiz.